आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साल 2025-26 का बजट ऐवान में पेश किया। अपोजिशन जमातों का मिला जुला रद्द अमल। AA सार्फिन को 10 किलो चावल और 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम होगी। ख़वातीन SRTC बसों में मुफ्त सफ़र की हकदार होंगी। ओल्ड एज पेंशन में 500 रुपये का इजाफा। वज़ीर आला ने मरकजी सरकार की स्कीमों पर मबनी बजट ही ऐवान में किया पेश। बीजेपी और PDP में मेंबरान का इल्जाम। और सरमाई तातीलात के बाद स्कूल खुल गए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने खुद बच्चों का इस्तकबाल किया। मौज़ूआत की तफसील आप सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर का बजट बराए 2025-26 आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली के ऐवान में पेश किया। यूनियन टेरिटरी की असेंबली में पेश किया जाने वाला ये पहला बजट है। आज के बजट पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया गया। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और हिमायती जमातों ने बजट को अवाम दोस्त करार दिया, वहीं बीजेपी, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों के मेंबरान असेंबली ने इस बजट को मायूस कुन करार दिया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास वज़ीर ख़जाना का कलमदान भी है। उन्होंने बजट तकरीर का आगाज़ एक फ़ारसी शेर से करते हुए कहा, ये इक़्तिसादी तरक्की का रोड मैप है और लोगों की उमंगों का सही अक्कास है। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की तारीफ़ की। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि 1 अप्रैल से ख़वातीन सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र कर सकती हैं, जबकि AA सार्फिन को 10 किलो चावल मुफ्त फराहम किया जाएगा और उन्हें 200 यूनिट की बिजली भी मुफ्त फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि रवां बरस में 10,000 से ज़्यादा खाली असामियाँ पूरी की जाएंगी, जबकि उम्र रसीदा अफराद के माहाना पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी करके इसे 1500 से 2000 किया गया है। मौसूफ ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। To empower artisans, PM Unity malls will be developed in Srinagar and Jammu for direct market access. The Karkhandar scheme will be expanded and universal coverage under the artisan credit card will be ensured. Key policies including the J&K public procurement, logistic and export policies will be introduced to strengthen the business ecosystem and boost global market access. To promote sustainable resource extraction, district survey reports have been finalized for all districts and implement the Raising and Accelerating MSME Performance or RAMP scheme and launch MSME help clinics, skill development programs and buyer-seller meets as well. Our government is committed to ensuring the availability of essential construction material at reasonable prices while protecting local communities and preserving our ecological heritage. For the industry sector, a capital expenditure allocation of 602.85 crores has been made for 25-26, reflecting an increase of 291.44 crores over the revised allocation of 24-25, reinforcing our commitment to industrial growth and development in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir's healthcare sector has grown rapidly, with over 4,000 health facilities, including 2 AIIMS, 2 cancer institutes, and 2 bone and joint hospitals. AIIMS Jammu is operational, and AIIMS Kashmir is aimed to be made functional by 25-26. GMC Udhampur is nearing completion. 30-bedded emergency medicine departments will be established in all GMCs, and 10 nursing colleges will be fully equipped with faculty and staff. The GMC Handwara project will be fast-tracked with immediate site selection. Jammu and Kashmir will expand MBBS seats, postgraduate courses and BSc nursing and paramedic colleges to strengthen medical education. Tertiary care facilities will be enhanced and advanced medical courses will be introduced to ensure quality healthcare across the region. Under the Sehat initiative, all residents receive free health insurance of 5 lakh per family, with 85.49 lakh gold cards issued and 251 hospitals empaneled. Recognizing telemedicine as a solution to our geographical challenges, the government aims to integrate telemedicine services across various medical specialities, improving healthcare accessibility. Our government will shortly roll out the Sehat app to revolutionize healthcare in Jammu and Kashmir. This app will provide teleconsultation services,
online doctor appointments in government hospitals, and a digital health record system integrated with AB PMJAY Sehat insurance for seamless coverage access. We have doubled the funding for machinery and equipment to 400 crores this year. 3 new cath labs will be established, one each in North Kashmir, Pir Panchal and the Chenab Valley, with a budgetary provision of 45 crores. Over the next 3 years, MRIs and PET scanning services will be made available in all new government medical colleges, while CT scan services will be fully implemented in all district hospitals with an allocation of 110 crore rupees. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली ऐवान में 2025-26 का बजट पेश किया। मौसूफ ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारे चैलेंजेस बहुत वसी हैं, लेकिन हमारी इज्तिमाई तौर पर इन चैलेंजों का मुकाबला करने का अहद करना पड़ेगा ताकि हम गैर मुतज़लज़ल इरादे के साथ आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा, हमने इस बजट को लोगों के ख्वाबों, हमारी आने वाली नस्लों की ज़रूरियात और जम्मू कश्मीर के हर शहरी की उमंगों की हकीकी अक्कास के तौर पर तैयार करने की कोशिश की है। इसी दौरान आज असेंबली ऐवान में वक्फे सवालात के दौरान हिज़्ब इक़्तिदार, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन मेंबरान के बीच कई मामलात को लेकर तीखी तकरार हुई। तफासील के साथ जम्मू से जावेद मेहराब। कानून साज असेंबली की कार्रवाई की शुरुआत यूं तो वक्फे सवालात से हुई, लेकिन वक्फे सवालात के दौरान आज भी हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिदार के दरमियान तीखी नोक-झोंक और एक दूसरे के साथ सख्त तकरार देखने को मिली। ठीक 10 बजे वक्फे सवालात से शुरुआत हुई कार्रवाई के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने पदरी नागेनी के जाफरान किसानों को मिलने वाली माली माउनत के मुतल्लिक सवाल पूछा। जवाब में जहां वजीर मौसूफ जावेद अहमद ने कहा कि 19,979 मरला जमीन की माली और टेक्निकल मुआवत दी जा रही है और अभी तक 10 बार ट्रेनिंग कैंप्स भी लगवाए गए हैं, जिसमें 250 के करीब जाफरान से जुड़े किसानों ने हिस्सा भी लिया और इस दौरान ऑर्गेनिक क्लस्टर्स भी बनाए गए हैं। वजीर मौसूफ ने मेंबर को यकीन दिलाया कि वो उनसे सलाह मशवरा कर मौके पर जाकर जाफरान पार्क की जमीन से मुतल्लिक फैसला लेंगे ताकि जमीन की निशानदेही के बाद काम शुरू किया जाए। इस ज़िमन में हसनैन मसूदी ने भी सप्लीमेंट्री सवाल पूछा। वहीं मेंबर महराज मलिक ने भी अपनी सीट से खड़े होकर हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंच की तरफ और स्पीकर से मुखातिब हुए, जिस पर भाजपा के मेंबरान ने सख्त एतराज जताया और अपनी नशिस्तों से खड़े होकर मेंबर महराज मलिक को खामोश करने की कोशिश की। और इस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने स्पीकर से बिला वजह इस सवाल पर मुख्तलिफ मेंबरान को सवालात पूछने की इजाजत देने के लिए तीखी तकरार की और कहा कि मेंबर महराज मलिक हर बार हाउस का वक्त बर्बाद करते हैं। इस पर मेंबरान के बीच सख्त तेज कलामी हुई। वहीं दूसरी तरफ शेख खुर्शीद ने भी भाजपा के लीडर सुनील शर्मा से तीखी तकरार की और इस तरह से हाउस का माहौल आज भी काफी गर्मा गया। तीसरा सवाल फारूक अहमद शाह ने पुंछ संगमरग रोड वाया लोरेन के मुतालिक पूछा। सवाल में सड़क की हालिया हालत और इसको कब तक पूरा किया जाए, इसी के मुतालिक सवाल पूछा। जवाब में नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अभी तक इस जगह पर किसी तरह की सड़क का काम हाथ में नहीं लिया गया है, लेकिन इस दौरान नायब वजीर आला ने ये कहा कि ये सड़क खत्ता पीर पंचाल को कश्मीर से जोड़ने के लिए एक अहम साबित हो सकती है और लोगों को भी इसमें मांग है। उन्होंने दोहराया कि सड़क की तामीर के लिए खुद वजीर आला और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब ने भी दिल्ली जाकर जोर लगाया है और खुद भी मैं ये चाहता हूं कि सड़क बन जाए ताकि कश्मीर और पीर पंचाल का राब्ता मजबूत हो। और इस ज़िमन में एजाज जान की शिकायत पर नायब वजीर आला ने इंक्वायरी करने की भी बात की। हाउस में मेंबर बशीर अहमद वीरी ने जावेद अहमद राना के महकमे जल शक्ति महकमे की तरफ से दिए गए उनके सवाल पर जवाब से सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि ऐवान को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमे के जवाब को पूरी तरह से मजाक करार दिया जाना चाहिए और वजीर मौसूफ को मामले पर सख्त कदम उठाने को कहा। इस ज़मन में त्राल के मेंबर असेंबली ने भी मामले पर अपनी बात रखी और मुतल्लिका अफसरों की नाअहली और इस पूरे प्रोजेक्ट को एक फ्रॉड करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बिजबिहारा से त्राल तक 35 लाख लोगों का मामला है और वजीर मौसूफ को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। वक्फ सवालात में तारिक हमीद करा ने भी बटमालू सेक्रेटरीट तामीर के मुतल्लिक सवाल पूछा, जिस पर महकमे के वजीर सकीना मसूद यत्तू ने पढ़कर अपना जवाब सुनाया और यकीन दिलाया कि सेक्रेटरीट की बुनियाद रख दी गई है, जल्द ही बिल्डिंग पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा।
वक्फ सवालात का आखिरी सवाल मेंबर तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते कैंसर केसेस के मुतालिक पूछा। वहीं इससे पहले मेंबर सज्जाद गनी लोन ने उनके इलाके में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के मुतालिक सवाल पूछा। इस ज़िमन में मीर सैफुल्लाह ने भी मेडिकल कॉलेज की तामीर से मुतालिक सवाल पूछा। जवाब में वजीर मौसूफ सकीना यत्तू ने मेडिकल कॉलेज बनने से मुतालिक कहा कि जल्द ही एग्रीकल्चर महकमे और उनको जमीन की निशानदेही कर ली जाएगी और अस्पताल को एक माकूल जगह पर बनाया जाएगा ताकि कुपवारा, हंदवारा, गुरेज, तंगधार के दूर दराज के आम लोगों तक फायदा मिल सके और इन दूर दराज के लोगों को इलाज की राहत महसूस हो। वहीं तनवीर सादिक के कैंसर से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ सकीना मसूद यत्तू ने कहा कि महकमा सेहत आमा कैंसर की खतरनाक बीमारी को जम्मू कश्मीर में ज्यादा केसेस होने पर सख्त फिक्रमंद है और कैंसर से बचने और जल्दी पता करने के लिए अस्पतालों में मॉडर्न मशीनरी को लगाया जा रहा है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। वक्फ सवालात के खत्म होते ही वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज ऐवान में बजट 2025-2026 पेश किया, जिस दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के तमाम मेंबरान हाउस में मौजूद रहे। लगभग 1 घंटे तक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अंग्रेजी में अपनी बजट तकरीर पढ़ी। बजट पर बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को ताबनाक, तरक्की पसंद, मॉडर्न और भरपूर मालियत के साथ बदलने का अज़म दोहराया। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। असेंबली ऐवान में वक्फे सवालात की कार्रवाई के ताल्लुक से समईन आज असेंबली ऐवान में पेश किए गए बजट पर सियासी जमातों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने इसे एक तारीखी बजट करार दिया है, वहीं बीजेपी के लीडर और ऐवान में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील कुमार शर्मा ने बजट को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में जो लोगों से वादे किए थे उनका बजट में कोई जिक्र नहीं है। सुनील शर्मा ने कहा कि बजट में सिर्फ उन तमाम स्कीमों का जिक्र है जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शुरू की हैं, जबकि कैजुअल लेबरर्स, ठेकेदारों और दीगर अहम मुद्दों का बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को पूछना चाहता हूँ, जो आपने 2 घोषणाएं की कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा और मैरिज असिस्टेंस फीमेल्स को दूंगा, वुमेन को दे दूंगा और 10 किलो राशन, वो सिर्फ और सिर्फ घोषणा AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो लोग रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उनके लिए। मैं मानता हूँ वेलकम स्टेप है AAY के लिए, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? गरीब तबका इतना है, आज तो लोग सड़कों पे आए गरीब तबका कि वो देख रहे थे आज की कुछ उमर अब्दुल्ला साहब जो इसने वादे किए थे शायद उनका कोई यहाँ पे अजाला हो, कुछ नहीं। मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब जब चुनाव के दिनों में स्टेज पे चढ़ते थे ये बोलते थे मैं बिजली फ्री सबको दूंगा, मैं राशन सबको दूंगा, मैं गैस सिलेंडर सबको दूंगा, मैं पेंशन सबको दूंगा। तो वो सब कहाँ गया आज? मैं और 2-3 सवाल उमर अब्दुल्ला साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा। मुझे बताइए, डेली वेजर्स के लिए बहुत रोना रोते थे आप, कहाँ गई आपकी डेली वेजर्स के लिए कोई स्कीम? बताइए क्या रखा आपने इस बजट में डेली वेजर्स के लिए? 1 लाख लोग जब सड़कों पे थे आप तो बड़ा चिल्ला रहे थे, डेली वेजर्स के लिए तो आप बड़ी छाती पीट रहे थे। क्या किया उनके लिए आप मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर के लिए आप बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड बहुत लोग हैं, अनएम्प्लॉयड के लिए आपने क्या किया? अलबत्ता मैं बताना चाहूँगा, पिछले 2-4 सालों में जब LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी 42,000 नौजवानों को यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। आपने तो एक व्यक्ति की भी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्कीम यहाँ पे घोषित नहीं की। आप मुझे बताइए, एमनेस्टी के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, आप बिजली बिल्स की एमनेस्टी यहाँ पे लाएंगे, आपने उसका भी कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे कंट्रैक्टर्स की पेमेंट इतनी पेंडिंग है, आपने दिल्ली से तो पैसा लाया, कंट्रैक्टर्स को पैसा कब मिलेगा? सारे रोड जो है, सारे काम जो है स्टक है, होल्ड है, हेल्ड अप है, उसके लिए कुछ नहीं किया आपने यहाँ पे एक आम बेचारा जो एम्प्लॉई है अपनी जीपी के लिए वो तरसता है, उसके लिए कोई योजना नहीं लाई। आपने ओबीसीज के लिए कोई योजना नहीं लाई, आपने शेड्यूल कास्ट के लिए कोई योजना नहीं लाई, आपने शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई योजना नहीं लाई। जिस बस सेवा की आप बात करते हैं, आप मुझे बताइए रूरल एरियाज में कौन सी महिला को आप कौन सी गवर्नमेंट व्हीकल देंगे? AAY सार्फिन को मुफ्त राशन और 200 यूनिट का मुफ्त पावर देना ठीक, लेकिन बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बात कर रहे थे असेंबली में अपोजिशन के लीडर सुनील कुमार शर्मा। इधर कांग्रेस के लीडरान ने वज़ीर-ए-आज़म उमर अब्दुल्ला की जानिब से ऐवान में पेश किए गए बजट को अवाम दोस्त करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने जिन सोशल सर्विसेज की तरफ तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की थी
वज़ीर आला ने बजट में उनका पूरा ख्याल रखा है। प्रदेश कांग्रेस के सदर और MLA बटमालू तारिक हमीद कर्रा ने वज़ीर आला की जानिब से पेश किए गए बजट को अवाम दोस्त और मुस्बत करार दिया। It is a pro-people budget. It has lot of positivity into it. और इसमें जो सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली, जो सोशल सेक्टर्स हैं, सोशल सेक्टर्स को सब के सब तकरीबन टच किए गए हैं। तो हमें अब इसको स्टडी करके ही पता चलेगा कि इसमें जो गैप्स हैं वो गैप्स फिल करने की भी इसमें जिक्र आया है। सो लेट अस स्टडी इट फर्स्ट, वी कैन टेल इट अबाउट इट ओनली टुमारो। ब्रॉडली स्पीकिंग सोशल सर्विसेज की जो हमारी बातें थी वो इसमें हमें सुनने को मिली है। अब हम स्टडी करेंगे इसको। 200 यूनिट जो बिजली दी गई है वो केवल पूरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली को दी गई है, जबकि वादा हुआ था सबको देने का। नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं हुआ था। जो मैनिफेस्टो में वादा था वो तो ये था। मैं NC के मैनिफेस्टो का नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारा था हमने भी पुअर फैमिलीज के वास्ते कहा हुआ था। तो अब इसमें देखते हैं कि मॉडलिटीज क्या तय होती है। वो ओवरऑल बजट जो है पॉजिटिव लग रहा है। कैसे पता लगेगा पुअर फैमिलीज और क्या है इनकी इनकम कैसे करेंगे? वो तो AAY के वास्ते उन्होंने बता ही दिया है दैट इट इज फॉर AAY। तो वो देखना है कि अब उसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। बजट पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा। इधर आज़ाद MLA थाना मंडी मोहम्मद मुजफ्फर खान ने कहा है कि यह बजट एक तरह से इक्तिसादी तरक्की का रोड मैप है और ये अगले 5 साल के लिए बुनियाद फराहम करता है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि जो मुद्दे आज के बजट में रह गए हैं उन्हें आगे शामिल किया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि असेंबली में आज पेश किया गया बजट गरीब आवाम की बेहतरी के लिए है। उन्होंने कहा कि हमने जो लोगों के साथ वादे किए थे उनको पूरा किया गया है। इसी दौरान MLA लंगेर शेख खुर्शीद अहमद ने बजट पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि आज के बजट से साबित होता है कि लोगों के मैंडेट को धोखा दिया गया है और जो वादे उनके साथ किए गए थे उनका बजट में कोई जिक्र नहीं है। इधर PDP के मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा, मुझे पता है कि इस वक्त हुकूमत को कई मुश्किलात का सामना है, लेकिन इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि वज़ीर आला ने सिर्फ मरकजी स्कीमों के आदाद शुमार पेश किए। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सलमान सागर ने कहा, 7 साल के बाद हमने ऐवान में बजट पेश किया और सब लोगों को पता है कि यह बजट यूनियन टेरिटरी में पेश किया जा रहा है, लिहाजा लोगों को हमारी मुश्किलात का इल्म है। हमने एक शुरुआत की है, अलबत्ता मरकजी सरकार रियासत का दर्जा बहाल करती है तो लोगों की सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। इसी दौरान MLA शांगस एडवोकेट रियाज अहमद खान ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए बजट को एक दूरंदेश मंसूबा करार देते हुए कहा कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात के साथ हम आहंग है। एडवोकेट रियाज अहमद खान ने अनंतनाग मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के लिए बजट में रुकूमात मुहैया रखने की भी सराहना की। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज ऐवान में पेश किए गए बजट को अवाम दोस्त, नौजवान मुफीद और गरीब परवर करार दिया। उन्होंने कहा कि ये मिसाली बजट साबित होगा और जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की और खुशहाली की नई बुनियाद रखेगा। शहरबीन जारी है। हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज रमज़ान मुबारक के पहले जुमे पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कायम मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़िद हुआ। इसी दौरान जामा मस्जिद श्रीनगर में भी आज हज़ारों लोगों ने नमाज जुमा अदा की। शहर श्रीनगर की तारीख़ी खानकाह मोहल्ला में भी एक बड़ा इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जबकि खानकाह कदीम, जामे पांपुर और दीगर खानकाहों और ज़ियारतगाहों में भी बड़े बड़े इज्तिमात आज रमज़ान के पहले जुमे की नमाज पर मुनक़िद हुए। वादी कश्मीर में लगभग 3 माह की तवील सरमाई तातीलात के बाद आज सुबह स्कूल दोबारा खुल गए। इत्तिलात के मुताबिक आज बच्चों के इस्तकबाल के लिए स्कूलों को सजाया संवारा गया था और असातिज़ा और दीगर अमला स्कूल गेट्स पर खड़ा बच्चों का पुरजोश इस्तकबाल करते हुए देखा गया। बताया जाता है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN यत्तू और दीगर कई अफसरान ने आज सुबह कुछ स्कूलों में जाकर बच्चों का इस्तकबाल किया। इत्तिलात के मुताबिक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गड़ोल में सेशन के पहले दिन एनरोलमेंट ड्राइव शुरू की। बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की इत्तला कि आज हल्का इंतखाब बानिहाल गूल में बिजली की अदम दस्तयाबी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से कस्बे बानिहाल में मुजाहरे किए गए, जिनमें सैकड़ों की तादाद में आम लोगों और कांग्रेस कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरों की क़यादत कांग्रेस लीडर और साबिक वज़ीर वक़ार रसूल कर रहे थे।
مظاہرین نے محکمہ بجلی اور سرکار کے پتلے نظر آتش کیے اور سرکار اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بلند کیے۔ اسی دوران کھڑی، پوگل پرستان اور نیل میں بھی صارفین بجلی نے محکمہ بجلی کے خلاف مظاہرے کیے۔ صارفین کا کہنا تھا کہ سحری اور افطاری کے وقت بجلی کی عدم دستیابی سے وہ خاصے پریشان رہتے ہیں اور بجلی محکمہ اور انتظامیہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے۔ ادھر کلگام سے فاروق راتر کی اطلاع ہے کہ ضلع کے مختلف علاقہ جات اہربل، ٹنگ مرگ، وٹو، مالون، باڑی جالن، سوپر ٹنگ پورا، اڑی گام، بری گام، مسکھڑ، ٹاسر، گوجرناڑ اور ملناڑ کے ساتھ ساتھ دیگر بالائی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی خاص کر سحری اور افطاری کے وقت جاری ہے، جس کے باعث عام لوگوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سمن وادی کے دیگر درجنوں علاقوں سے بھی مسلسل شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ سحری اور افطاری کے وقت بجلی سپلائی متاثر رہتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امرگڑھ اسٹیشن سوپور سے نیا کٹوتی شیڈول جاری کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے چند روز سے شمالی کشمیر میں مزید کٹوتی کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی اطلاعات رفیع آباد، اوڑی، بونیار اور دیگر کئی علاقوں سے موصول ہو رہی ہیں۔ عوامی حلقوں نے ماہ رمضان کے دوران بجلی سپلائی کی ابتر صورتحال پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امرگڑھ اسٹیشن میں مرمت کا کام جاری ہے اور اگلے 2-3 روز میں گڑھ اسٹیشن کو مکمل طور پر بحال کیا جائے گا۔ ادھر گاندربل ضلع میں بھی 3 روز سے مسلسل بجلی کی صورتحال ابتر بتائی جاتی ہے۔ آبادی کی شکایت ہے کہ عین سحری اور افطاری کے وقت بجلی گل کر دی جاتی ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ رحیم رضوان۔ سحری اور افطاری کے دوران بجلی کی بے وقت کٹوتی کے باعث علاقے شیر پتری کے درجنوں علاقے جن میں سندبل، گوگجی گنڈ، پاری بل، سنجنا، شالبوگ، حکیم گنڈ، کٹھن، پیرپورہ، پاری بل گھاٹ، دراری بل، سہپورہ، تلاملا، کورگ، ریبتار، ڈاب، شالہار، نارائن باغ، شیخزو اور دیگر ملکہ علاقے شامل ہیں میں صارفین کی روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ افطاری اور سحری کے دوران ماہ مبارک شروع ہوتے ہی ان علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی اور آواجاہی کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں صارفین کو ماہ رمضان کے متبرک ایام میں طرح طرح کے مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح سب ڈویژن کنگن کے اقال، نجون، مین مارکیٹ کنگن، مامر، برنبو، خانن، پوشکر، وانگت، بابا نگری، کشنمبل، چھترگل، بابا ریشی، پرنگ، وسن منگام، وائل، گٹلی باغ، نونر، سرس اور آرس میں بھی بجلی کی آواجاہی سے عام لوگوں کو سحری اور افطاری کے دوران دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ محکمہ بجلی نے ماہ رمضان شروع ہوتے ہی اعلان کیا کہ اس بابرکت مہینے میں بجلی سپلائی بنا خلل جاری رہے گی۔ حد تو یہ ہے کہ تب سے بار بار غیر اعلانیہ کٹوتی کی جا رہی ہے، جس سے سحری اور افطاری کے اوقات صارفین گوناگوں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ادھر کوندبل، ملپورہ، سباپورہ، تریوسا، ینگورہ، بارسو، ریپورہ، لارسون، ڈانگر پورہ، لاک بلیور اور بینہامہ کے صارفین کی شکایات ہیں کہ متذکرہ علاقے سحری اور افطاری کے دوران گھوپ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں۔ حالانکہ محکمہ بجلی نے دعویٰ کیا تھا کہ رواں ماہ کے دوران بنا خلل بجلی سپلائی یقینی بنانے کے لیے متعلقہ محکمہ نے بہترین پلان مرتب کیا ہے، تاہم محکمہ زمینی سطح پر اس پلان کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔ اس دوران مختلف کلاسز خاص کر 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات بھی جاری ہیں۔ اس طرح بجلی کی آواجاہی اور بار بار کٹوتی کے سبب طالب علموں کی پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ضلع کے بیشتر بازاروں میں تجارتی سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہیں اور خاص کر طالب علم اپنے موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر روزمرہ استعمال میں لانے والے آلات نہ تو چارج کر پاتے ہیں اور نہ ہی ان آلات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ صارفین کا محکمہ بجلی کے افسران اعلیٰ اور موجودہ سرکار سے مطالبہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں متاثرہ علاقوں میں بجلی سپلائی یقینی بنانے کے لیے پوری اقدامات کی جانی چاہیے۔ ضلع گاندربل میں بجلی سپلائی کی صورتحال ابتر، رحیم رضوان کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر ایم ایل اے لولاب قیصر جمشید لون نے متھلی علاقے میں لوگوں کو درپیش مسائل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کپواڑہ متھل روڈ کو فی الفور بحال کیا جائے۔ قیصر جمشید لون نے لولاب اور دیگر حلقوں میں بجلی سپلائی میں بہتری لانے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ سحری اور افطاری کے وقت سپلائی